अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में एक दिलखराश वाक़या पेश आता है, जहाँ पे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात होती है और एक खातून ज़ख्मी होती है। कत्ल और ज़ख्मी होने वाले कौन हैं और इस वारदात का है मुजरिम कौन। नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे कत्ल की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई और एक ख़ातून जो है वो ज़ख्मी हुई। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुहर्रिकात थे, क्यों नौबत यहाँ तक आ गई कि कत्ल जैसा कभी फ़ेल जो है वो सरजद हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। नाम अब्दुर्रज़ाक। अब्दुर्रज़ाक भाई, बताइएगा कि क्या हुआ था जो घर में होने वाली जो एक बहस व तकरार है या एक झगड़ा जो है वो यहाँ तक पहुँच गया कि बात कत्लो गारतगरी तक आ गई। सिर्फ 10 दिन हो गए ਸੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 10 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪੈ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉਰੇ, ਪੈ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ रुकया नहीं गा। ये आप अपने दामाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी। आपकी बेटी की शादी जो है वो कितना अर्सा पहले हुई? 5 महीने। 5 माह के दौरान पहले भी आपकी बेटी ने आपको बताया कि वो आपका जो दामाद है वो आपकी बेटी पे तशद्दुद करता है? और आपदी माँ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। तो ये उसके तशद्दुद से तंग आके ये आपकी तरफ आई थी या सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए आई? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। अच्छा, वो भी यहीं था पहले जब इसने आपकी बेटी ने आपको कंप्लेन की है कि मेरा हस्बैंड मुझ पे तशद्दुद करता है, हाँ जी। तो उस वक्त वो यहीं पे मौजूद था? हाँ जी। और आपने उससे पूछा फिर? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਫਾਕ ਰੱਖੀਦਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਪਾ ਇਹ 5-7 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਿਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। वो नाराज़ होके उठ के गया यहाँ से गुस्सा करके? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ। ये वक्त कौन सा था? शाम थी, रात थी? ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕੋਠਾ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਵਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ। अकेला आया था या इसके साथ और लोग थे? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਇਆ, ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿੰਟ 2 ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆ, ਤਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਫੈਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, 3 ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ। जब आपने अपनी बेटी का रिश्ता उस शख्स से किया था तो आपने देखा नहीं कि वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो काम काज क्या करता था? ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। जब जिस दिन ये वकूआ हुआ फिर वो यहाँ से फायरिंग करने के बाद क्या फरार हुआ, खड़ा रहा, उसने कोई नारेबाजी की, क्या उसका मौक़िफ़ क्या था, किस चीज़ को बुनियाद बना के उसने कत्ल जैसा काम किया? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਪਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਪਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਪਪਾ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਪਪਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ।
ਤੇ ਬਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਪਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। और बाकी जो अफराद थे घर पे उनको भी कुछ धमकियां वगैरह दी हैं या फिर वो फायरिंग करके फिर निकल गया? ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਐਦਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਐਡਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। अच्छा, अभी वो अरेस्ट हो गया है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ਪੁਲਿਸ ਨੇ क्या कहते हैं अभी आपके उसको, आपको किस टाइप का इंसाफ चाहिए? क्या आप, क्योंकि हम जो एशियन लोग हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम अपनी बेटियों के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं और हम कहते हैं कि बेटी का घर बच जाए। तो अगर पुलिस ने इतनी मेहनत की है, उसको अरेस्ट किया है, कल कलां को अगर आप कहें कि नहीं हमारी बेटी का घर है तो चले हम माफ़ करते हैं, तो फिर आप बताएं आप क्या चाहते क्या हैं? क्या आपकी गवर्नमेंट से, हुकूमत से क्या अपील है? ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ। अच्छा, जो आपका जो बेटा जिसको कत्ल कर दिया गया वो क्या करता था? कितनी उम्र थी उसकी और क्या करता था? 18 ਸਾਲ ਸੀ, ਆ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। मेहनत मजदूरी करता? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ। कितने बच्चे हैं आपके? इस जो आपकी बेटी ज़ख्मी हुई और जो बेटा कत्ल हुआ उसके अलावा कितने बच्चे? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮਗਰ। छोटे हैं वो? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ। आप खुद क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੇਰੀ ਫੂਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਜੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में 9 ब्याहता दुल्हन जिसकी शादी को अभी 4 से 5 माह हुए हैं वो अपने मैके आती है। ज़ालिम शौहर जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, उसकी ईगो हर्ट होती है, उसकी अना का मसला बन जाता है जब वो खातून अपने वालिदैन को आकर ये बताती है कि ये बिला वजह बग़ैर किसी उज़र के तशद्दुद करता है और तशद्दुद करना इसका मामूल है। उसकी ईगो को चोट पहुंचती है और वह नाराज़ होकर घर से निकल जाता है। दुल्हन के लड़की के घर वाले उसे रोकते हैं, उसी मिन्नत समाजत करते हैं कि रुक जाए, बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और फिर बाकायदा प्लानिंग के साथ वापस आता है, मुसल्ला होकर वापस आता है और घर में घुसकर बेदरेग गोलियां चलाता है, जिससे उस लड़की का भाई यानी मुद्दई मुकदमा का बेटा हलाक हो जाता है और जो लड़की है वो ज़ख्मी हो जाती है। अब मामला ये है कि पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सोचने की बात यह है, हम मेहनत कश मज़दूर गरीब घरों के मसाइल क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्यों हमारी ज़िंदगियों में इतनी तलखी घुलती जा रही है कि हम किसी भी मामले को बैठकर अफ़हाम व तफ़हीम से टेबल टॉक के ज़रिए हल नहीं कर सकते? क्यों तशद्दुद, वायलेंस और कत्ल व गारत को ही हम अपना मामूल बनाते जा रहे हैं? ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि कानून पूरा हरकत में आए, करार वाकई सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो और वो इस तरह के फ़ेल से रुके रहें। नाज़रीन, थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में फैसलाबाद के अंदर एक घर के अंदर ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात रिपोर्ट हुई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरिंदे बनते जा रहे हैं, हम अपनी कुर्बत के ताल्लुकात में बिल्कुल भी मोहतात नहीं रहे हैं, हम जानवरों जैसा सलूक करना अपना शायद पैदाइशी हक समझते हैं। एक ऐसे ही गरीब सफ़ेद पोश घर के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे साथ वो मुतासरा लड़की मौजूद है जिसके हस्बैंड ने इनके घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इनका भाई जो है वो मौका पर जाँ बहक हुआ, ख़ुद इनको गोलियाँ लगीं। अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी महफूज रखी। क्या मुहर्रिकात थे, क्या वक़ूआ पेश आया, क्या मोटिव था उस मुलज़िम का जिसकी नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसे पिस्टल का इस्तेमाल करना पड़ा, उसे गोलियाँ चलाना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बीबी, बताइएगा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्यों इस तरह की नौबत पेश आई कि आपको जो है वो इस तरह से ज़ख्मी होना पड़ा और भाई आपका इस दुनिया से चला गया? ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ। जब आपकी शादी हुई है तो आपको कितने अरसे बाद ये एहसास हो गया कि वालिदैन से चॉइस जो है वो गलत हो गई है, ये दरिंदा है,
ये तशद्दुद करता है, मारता पीटता है? कितने अरसे के बाद उसने मार पीट जो है वो शुरू कर दी थी? हफ्ते के बाद। एक हफ्ते के बाद? हाँ जी। आपने उस वक्त अपने वालिदैन को बताया इस तरह का कुछ? नहीं। अभी आपकी शादी को 4 से 5 माह जो हैं वो हमारे ज़राए से ये पता चला है कि 4 से 5 माह सिर्फ आपकी शादी को हुए हैं। इतने कम अरसे में एक हफ्ते के बाद जब उसने आपके साथ ये तशद्दुद शुरू कर दिया तो आपको उसी वक्त अपने वालिदैन को बताना चाहिए था। आपने क्या सोच के ये बात अपने अंदर दबाई रखी? किस बात का डर था? धमकियाँ देंदा सी, कहंदा दस्सिया तेन मार दूँ। अच्छा, और ये जो जब पिस्टल आपने कहा कि ये तकिए के नीचे, ये नॉर्मल अपने साथ हर वक्त जो है वो पिस्टल रखता था? नहीं जी, सराहने थले रात में पैन लगा रखदा सी। किस चीज़ का डर था? जब घर में गुर्बत है, जब एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, तो आपको कभी लगा कि ये पिस्टल इसके पास होना जो है ये हो सकता है किसी जराइम पेशा से इसका ताल्लुक़ हो सकता है कोई गलत काम करता हो, वरना एक मज़दूर आदमी को अपने तकिए के नीचे पिस्टल रखने की ज़रूरत क्या थी? जी पता नहीं। अच्छा, फिर जिस दिन ये वाक़या हो गया, जिस दिन वो आया है गुस्से में और उसके पास पिस्टल था, उस दिन मुझे बताएं कि क्या हुआ था? जी आके बैठा, मेरे भाई ने कहंदा मैनूं लैण आया हाँ, ते मेरे अम्मी अब्बू इधर कमरे 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਘਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ। फिर मेरे भाई की फायरिंग की, फिर मेरे। नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब वो अभी आपको वो कह रहा है आपको लेके जाना है, आपके भाई ने ये कहा कि वालिद साहब आ जाएं या वालिद साहब से पूछ के फिर हम भेज देते हैं, कोई तल्ख कलामी तो हुई होगी, कोई किसी तरह का ऊंचा शाउट तो उसने किया होगा, या बिल्कुल आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की हरकत करेगा? वो बाहर निकला वॉशरूम के बहाने और वापस एंटर होकर उसने बगैर, उस वक्त उसके मुँह के अल्फाज क्या थे जब वो फायर कर रहा? जी पता नहीं। आपको कुछ याद नहीं? नहीं, मैं पे ही हुई थी। आप लेटी हुई थी? फिर आपको जब उस आपके भाई पे उसने फायर किया, फिर आप पे फायर किए, कितनी गोलियां लगी आप? 3। 3 गोलियां? हाँ। सीएम साहिबा से, मरियम नवाज से, आईजी पंजाब साहब से, आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद साहब से, किस शक्ल में आप इंसाफ चाहती हैं? आप चाहती हैं कि जिस तरह आपके भाई के साथ उसने सलूक किया वैसा ही सलूक उसके साथ किया जाए? हाँ जी, वैसे मौत होती उसे मिलनी चाहिए। कैसी सज़ा मिली? मौत। सज़ाए मौत चाहती हैं आप? नाज़रीन किराम, होंठ कपकपाने लग जाते हैं जब आपका अपना खूनी रिश्ता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहता, जब जिसके साथ आप रिश्ते अज़दवाज में बंधे हैं वो दरिंदा हो, जब उसे इंसानियत का एहसास ना हो, तो फिर आप किसी से पूछने वाले नहीं होते कि इस जुर्म का है मुजरिम कौन। मुजरिम वो है जिसकी तरबियत में फ़र्क था, मुजरिम वो है जो गरीबी के बावजूद अपने तकिए के नीचे पिस्टल कैरी करता था, मुजरिम वो है जिसने घर में घुसकर बेदरेक गोलियां चलाईं, मुजरिम वो है जो अब असर व रसूख के तहत घर वालों को प्रेशराइज़ भी करेगा। शायद मुजरिम पूरा मुआशरा है जो सफ़ेद पोशों के मामलात को कभी भी हल नहीं होने देता। हम बहसीत मुआशरा भेड़ियों का एक झुंड बनते जा रहे हैं, हम जानवर बनते जा रहे हैं, हमें अपने ताल्लुकात में एहतियात बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हमारी ईगो का मसला बन जाए तो हम कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा फ़ैसला एक तरफ। ये वाक़या जिसमें एक नौ ब्याहता दुल्हन जिसे 4 से 5 माह हुए हैं शादी को, उसे वापस ले जाने पे कोई ऐसा झगड़ा नाज़रीन इकराम बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी की जान लेनी पड़ जाए। इस बात को बैठ के हल किया जा सकता था। ज़रा सी बर्दाश्त हमारी ज़िंदगियों को एक स्मूथ तरीके से चला सकती है, ज़रा सी बर्दाश्त हमें ये बता सकती है कि हम अपने तमाम रिश्तों को इकट्ठा करके यकजहती के साथ चल सकते हैं। लड़ाई, तशद्दुद, वायलेंस और कत्ल गारत किसी भी मसले का हल नहीं है, ना कानूनी तौर पे, ना शरई तौर पे और ना ही इखलाकी तौर पे। नाज़रीन इकराम, मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स अपनी जान से गया और एक लड़की ज़ख्मी हालत में हुई। ये वो जगह है जहाँ पे झगड़ा हुआ। शायद वो अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया था और
बीवी के भाई ने जो है यानी उसके बरादर निस्बती ने उसे कहा कि जब तक वालिदैन इजाज़त नहीं देते तब तक हम आपके साथ नहीं भेजें, वालिदैन आ जाएँ, उनकी मंशा से हम आपके साथ भेज देंगे। यहीं पे उसकी ईगो का मसला बना। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन इकराम ये भी है कि ये दरो दीवार, ये कमरा एक बेबसी की, एक गुर्बत की तस्वीर है, मुंह बोलती तस्वीर है। शायद हमारी गुर्बत ही हमारा सबसे बड़ा जो है वो लम्हा फ़िक्रिया बन जाती है, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी गुर्बत बन जाती है। ये दरो दीवार बताते हैं कि मेहनत कशों के हालात जो हैं वो उनके मसाइल से कहीं ऊपर ख़राब होते हैं। मसाइल से ज़्यादा वसाइल की जो तलब है वो गरीब आदमी को शायद 2 वक्त की रोटी तक महदूद कर देती है। ये कमरा जहाँ पे इस बेड पे ऊपर वो ख़ातून मौजूद थी, उसके साथ उसका भाई था, जहाँ पे एंटर होके थोड़ी सी बहस मुबासे के बाद मुलज़िम वॉशरूम के बहाने इसी कमरे से बाहर निकला और फिर वापस पिस्टल लोड करके अंदर आया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जो उस लड़की का भाई है मकतूल, उसी वक्त मौका पर उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके सर में गोली दे रखी थी और उस लड़की के जिस्म ने 3 गोलियां बर्दाश्त की हैं, जो अब वापस ज़िंदगी की तरफ तो ज़रूर लौट रही है, लेकिन शायद उसके रूह पे लगने वाले ज़ख्म जो हैं वो कभी भर ना सकें। जिस्म पे लगने वाले ज़ख्म भर जाएंगे, रूह जो ज़ख्मी हुई है उसका शायद कोई हल नहीं। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में एक शख्स अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए जाता है और वहाँ पर झगड़ा तवालत पकड़ता है। मुसल्ला शख्स जो है वो गोलियों की बारिश कर देता है, जिसके नतीजे में उसकी बीवी का भाई यानी कि मुलज़िम का साला जो है वो मौके पर जाँ भाग हो जाता है, जबकि उसकी बीवी को भी 3 बुलेट्स लगती हैं और वो ज़ख्मी हालत में होती है। मुलज़िम जो है वो मौका से फ़रार होता है। मेरे साथ इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौजूद हैं, मोहम्मद इशफाक साहब, सब इंस्पेक्टर हैं और इस सारे केस को इन्होंने देखा, मुलज़िम को अरेस्ट किया। इनसे जानते हैं कि किस तरह से मुलज़िम को कहाँ से अरेस्ट किया और पूरे मुहर्रिकात क्या थे, इस केस का बैकग्राउंड क्या था। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या ये वाक़या पेश आया, किस तरीके से, और इस शख्स ने ऐसा क्या किया था कि इसको कत्ल का जो है वो कभी फेल, जो बड़ा फेल है, वो करना पड़ गया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। ये सर 2 जनवरी 2025 को इकरा बेगम अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी। इसका खामंद है सजाद अकबर, जिसके साथ इसका घरेलू नचाकी की वजह से नाराज़गी चल रही थी। तो वकूआ के दिन इसका खामंद जो है सजाद अकबर, वो इसको मनाने के लिए घर आया है और उसके पास पिस्टल 30 बोर भी था। तो उसने जब टेबल टॉक की है तो दौरान गुफ्तगू इनके आपस में रंजिश हो गई है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया एक दूसरे से। तो उसने फायरिंग शुरू कर दी है अंधाधुंध, जिसकी वजह से 3 इंजरीज़ उसका जो ब्रदर इन लॉ है अब्दुल कादर, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है, उसे आई हैं और 3 इंजरीज़ उसकी वाइफ में जो उसकी मिसेज़ इकरा परवीन है उसे आई हैं। अब्दुल कादर की मौका पर डेथ हो चुकी थी और जो उसकी मिसेज़ है उसको इंजर्ड हालत में हमने फौरी अपनी प्राइवेट व्हीकल में अलाइड अस्पताल फॉर ट्रीटमेंट शिफ्ट कर दिया था। भाई ये बताइएगा कि जब ये वाक़या होता है तो पुलिस को इत्तला जो है वो कैसे मिलती है? क्या 15 पे कॉल मौसूल होती है या फिर कोई शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन में आके इसकी दरख्वास्त दायर करता है? जी सर, ये पुलिस को बजरिया 15 रेस्क्यू इत्तला मौसूल हुई है इसकी। रेस्क्यू से 15 से जो है वो कॉल मौसूल होती है और मुलज़िम जो है वो फायरिंग करने के बाद, ये वकूआ करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया या फिर वहीं पे उसने स्टे किया, वहीं खड़ा रहा? जी, मुलज़िम सजाद अकबर वहाँ से इमीडिएटली स्किप हो गया था और उसने अपने आप को एक डिज़र्टेड प्लेस में हाइड आउट कर लिया था। तो फिर जो है आपने ज़ाहिर है पहले सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो ज़ख्मी है उसको जो है इलाज मुआलजे के लिए आपने हॉस्पिटल शिफ्ट किया होगा। जो डेड बॉडी थी उसको ज़ाहिर है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी हॉस्पिटल में मुंतकिल। मुलज़िम को कहाँ से और कब आपने शुरू किया कि इसको अब अरेस्ट करना है, इसको पकड़ना है, और फिर बिलाखिर क्या क्या आपने जो है स्टेप्स लिए, कहाँ से उसको अरेस्ट किया? जी, आपकी बात दुरुस्त है। सबसे पहले हमने इंजर्ड जो मुसम्मात इकरा परवीन है उसे हॉस्पिटल बराए इलाज मुआलजा शिफ्ट किया है। लेटर ऑन जो डेड बॉडी है उसकी कुछ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, हमने PFS से टीम को क्राइम सीन पे बुलाया है और वहाँ से उन्होंने हमें बकल स्वैब्स दिए हैं पार्सल बनाकर, और इसी तरह हमने वहाँ से क्राइम एम्प्टीज़ जो बुलेट शेल एम्प्टीज़ हैं वो कब्ज़ा पुलिस में लिए हैं।
मुलज़म का हमने फौरी एक रेडिंग टीम जनाब CPO साहब की हिदायत पर फौरी जनाब ASP साहब गुलबर्ग की सरबराही में तश्कील दी गई थी और फौरी उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी और विद इन फ्यू आवर्स हमने मुलज़म को अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, दिन भी नहीं, कुछ घंटों के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया? जी श्योर, विद इन फ्यू आवर्स हमने उसे डिटेन कर लिया था। कहाँ पे ये छुपा हुआ था? क्या अपने घर में था या फिर कहीं दूर पार जो है इसने फ़रार होने की कोशिश की? जी ये वहाँ एक मज़ाफ़ाती एरिया में ईंटों का भट्ठा है जो अभी बंद पड़ा है, उजड़ी हुई जगह है, डिज़र्टेड प्लेस है। उसके अंदर एक पुराना बसीदा कमरा था, उसके अंदर इसने अपने आप को हाइड आउट किया हुआ था। तो आपको कैसे इल्म हुआ? क्या कोई आपने टेक्नोलॉजी सोर्सेज जो हैं उनको यूज़ किया या फिर आपका जो नेटवर्क होता है, खबरी नेटवर्क, उससे पुलिस को क्ल्यू कैसे मिला कि ये मुलजिम जो है इस वक्त यहाँ पे छुपा हुआ? जी ये हमने ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया है। स्पाई इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इसने अपना स्विच ऑफ कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर वक़ुआ, तो हमने ह्यूमन रिसोर्स और स्पाई इंफॉर्मेशन को बुरे कार लाते हुए इसको फौरी अरेस्ट किया है। अच्छा, और जो आला कत्ल है वो पुलिस ने बरामद कर लिया? जी आला कत्ल इसमें पिस्टल 30 बोर है, वो रिकवर्ड मुलज़म ने अपनी पॉइंटेशन पे करवा दिया है। इशफाक भाई बताइएगा, ये पिस्टल है, ये क्या लाइसेंसी पिस्टल था या इसका कोई लाइसेंस नहीं था? इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी उसको रखने की? जी ये विदाउट लाइसेंस पिस्टल है और इसका जो वालिद है उसकी डेथ हो चुकी है, उसी ने किसी बंदे से परचेज़ किया था और इनके घर में ये पड़ा हुआ था, उसी को इसने यूटिलाइज़ करते हुए ये वक़ुआ किया। ये जो मुलजिम है ज़ाहिर है इसने अपने ससुराल में जाके ये वक़ुआ किया। ख़ुद ये कहाँ का रहने वाला था? क्या काम काज करता था? क्या इसका ज़रिया मुआश क्या था? जी खुद ये बिस्मिल्लाह टाउन गली नंबर 3 का रहायशी है और ये डेली वेजेस पे काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। और जो इसके ससुराल वाले हैं वो 20 लाइन रशीदाबाद के रहायश पजीर है जहाँ पर वक़ुआ हुआ है। इशफाक भाई अब एक शख्स है जो मेहनत मजदूरी करता है, ये हमारे मुआशरे में इस कदर असलहा जो है ये कहाँ से आ रहा है कि बग़ैर लाइसेंस के हर दूसरे तीसरे फ़र्द के पास जो है ये वेपन्स हैं, लोग वेपन कैरी भी करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस दर्जनों अफराद को गिरफ़्तार करती है। फैसलाबाद पुलिस ने बाकायदा क्रैक डाउन एक जो है ना वो किया हुआ है भी है नाजायज़ असले के ख़िलाफ़। उसके बावजूद हर दूसरे तीसरे मर्डर के पीछे जो है वो नाजायज़ असलहा पाया जाता है। कहाँ से आता है ये? जी आपकी दुरुस्त है, ये आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा मैसेज है पब्लिक को कि जिन लोगों के पास आप इलीगल वेपन देखते हैं हमें फ़ौरी थाना में इतला दें ताकि उनके ख़िलाफ़ हम इंसदादी कार्रवाई अमल में लाते हुए उस वेपन को कब्ज़ा पुलिस में लें और इस तरह के क्राइम की डेटरेंस हो। अच्छा, जब मुलजिम को आपने गिरफ़्तार कर लिया, ज़ाहिर है उसे इंटेरोगेट भी किया होगा, उसने बताया क्या है कि क्या उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं था या वो प्री प्लान्ड एक मर्डर था कि वो सोच के आया था कि आज या तो फिर मैं अपनी अना मेरी जीतेगी या फिर जो है वो मैं अपने आप को हर तरीके से मनवा कर आऊँगा? क्या उसने बताया क्या है दौरान तफ्तीश? क्यों उसको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि उसने कत्ल ही कर डाला? जी मुलज़म ने ये कन्फेशन किया है कि मियाँ बीवी की आपस में घरेलू कामकाज की वजह से मामूली टसल होती रहती थी, जिस वजह से उसकी मिसेज़ नाराज़ होकर अपने पेरेंट्स के घर विद इन फ्यू डेज़ आई हुई थी। उसने उसको मनाने की कोशिश की और सडन प्रोवोकेशन ही इस वक़ुआ का सबब बनी है। एक वो अपनी बीवी को मनाने के लिए ले जा रहा है तो एक ज़ाहिर है वो पिस्टल उसने कैरी किया हुआ है, उसके माइंड में कुछ तो चल रहा था कि अगर वो नहीं माने तो फिर मैं इस तरह की कोई हरकत करूँगा। जी ये आपकी बात दुरुस्त है, उसका जो माइंड इंटेंशन है जिसको हम क्राइम में मैनजरिया कहते हैं वो तो यही नज़र आ रहा है कि वो पिस्टल साथ लेके आया है। अगर वो जाने के लिए राज़ी ना हुई तो उसको फ़ौरन मौके पे इंजर्ड करेगा और अपने साले का कत्ल कर देगा। क्या इस सारे प्रोसेस में ये अकेला था या इसके किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने, भाई ने जो है इसकी सहूलतकारी की? जी इस सारे वाक़या में ये अकेला ही है, इसने खुद ही एग्जीक्यूट किया है। ये आइसोलेट पर्सन था और इसके साथ किसी किस्म का और आदमी मुलव्वस ना है। तो एक मजबूत केस जो है वो इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल होगा ताकि इसको करार वाकई सज़ा मिल सके? जी इसमें वेपन जो है वो रिकवर हो चुका है, एम्प्टीज़ जो हैं वो हमने सबमिट करवा दी हैं PFS डिपार्टमेंट में टाइमली, और इसकी फ़ाइल जो है हम बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। एक कोजेंट और प्लाजिबल एविडेंसेस हम सफ़ा मिसल पर लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इसे कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करेगी। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर इशफाक हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कैसे एक शख्स जो है वो अपनी रूठी हुई वाइफ को जो अपने मैके गई हुई थी मनाने के लिए जाता है लेकिन साथ वेपन कैरी करता है, वहाँ पे तल्ख कलामी होती है और वो
रात के औकात में फायरिंग करता है, जिससे उसका साला जो है वो मौके पर उसकी डेथ हो जाती है और बीवी जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। मुलजिम को चंद घंटों में ही फैसलाबाद पुलिस ने टीम ने जो है वो अरेस्ट कर लिया। मुलजिम इतना शातिर और चालाक था कि उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे पुलिस के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उनको दाद देना बनती है कि दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि चंद घंटों के अंदर उस मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब एक मजबूत केस फाइल करके उसे करार वाकई सज़ा भी दिलवाएंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में पेश आने वाले कत्ल की जो वारदात है किस तरह से पेश आई, जिसमें एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी के उसके मैके जो गई हुई थी उस पर गोलियों की बरसात की, जिससे उसका साला बरादर निस्बती जो है वो मौका पर जाँ बहक हुआ और बीवी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई। दोनों को बुलेट्स लगीं। क्या वाक़या पेश आया, किस तरीके से जो है वो पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट किया, ये हम जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद शुएब अहमद साहब मौजूद हैं, इंस्पेक्टर पुलिस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि ये कत्ल और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं ये हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त, ज़रा सी बात पे लोग खूनी रिश्तों को उनको जो है जानलेवा हमले करते हैं। ये जो स्पेसिफ़िक वाक़या पेश आया, कैसे पेश आया, पुलिस को कैसे इत्तला मिली और फिर कैसे जो है वो मुलजिम को अरेस्ट किया गया? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस पे जो हम माशरे की तस्वीर की सही अक्कासी कर सकते हैं उसमें आप जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी, ये वक़ुआ कुछ इस तरह से हुआ है कि 2 जनवरी रात करीबन 8 बजे 15 पे कॉल मौसूल होती है कि जो बेस लाइन है रशीदाबाद चौकी सिद्धपुरा का जो इलाका है थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का, वहाँ पे दौरान फायरिंग एक शख्स जाँ बहक हो गया और एक ख़ातून जो शदीद ज़ख्मी है। तो इस जो है 15 की कॉल जो कि था ये सीरियस नौयत की होती है, फ़ौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया और मौका पे पहुँचे। जब मौका पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो अब्दुल कादिर नामी शख्स था जो बिल्कुल यंग था, वो शदीद ज़रबात की वजह से एक्सपायर हो चुका था, जबकि उसकी बहन इकरा परवीन जो करीबन कोई शायद 16 साल उसकी उम्र होगी, वो शदीद ज़ख्मी थी। तो इस तरह की सूरत हाल में सबसे पहले जो हमारे लिए अहम चीज़ होती है, हमने जो ज़ख्मी है उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है ताकि उसकी कम से कम जान बचाई जा सके। तो उसके बाद हमने जो बाज़ाब्ता कार्रवाई है या जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं और उसके बाद हम जो मुलज़िम की तलाश में लग गए हैं। तो इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन मुलज़िम जो था चूँकि बहुत चालाक था और उसने मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हमें जो ज़्यादा ह्यूमन सोर्स पे डिपेंड करना पड़ा है। तो अलावा इसमें जो CPO साहब हैं जनाब कामरान आदिल साहब और जो रहमान कादिर साहब हैं SP लालपुर टाउन और राजिंदर मेघवाड़ साहब हैं ASP सर्कल गुलबर्ग, हमें उनकी तरफ से जो ख़ुसूसी तौर पे जो 24 आवर्स का टाइम इनमें दिया गया था और तमाम जो सीनियर अफसरान हैं उनकी हमें लम्हा पलम्हा जो है वो उनकी जो रहनुमाई है वो शामिल हाल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको गिरफ़्तार किया। अच्छा सर बताइएगा कि मुलजिम आपने बताया कि चालाक था, मोबाइल फ़ोन का वो यूज़ नहीं कर रहा था, मौका वारदात से वो फ़रार हुआ, फिर कैसे पुलिस के पास कौन सा ऐसा मैजिक है कि चंद घंटों के अंदर न सिर्फ उसको आपने ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ़्तार करके उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया? ये वाकई में हैरान कुन है। हमारी पुलिस के पास वसाइल ना होने के बराबर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे बेबस हो जाता है जहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन कैरी ही नहीं किया। कौन सा ऐसा तरीका अडॉप्ट किया पुलिस ने कि जो है मुलजिम को चंद घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर? देखें, जो सबसे पहली बात है कि जो किसी भी काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले आपकी नेक नीति और मेहनत शामिल होती है। तो मेरा ईमान है कि अगर आप नेक नीति से काम करें तो इसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो है शामिल हाल होती है। और दूसरे नंबर पे जो पंजाब पुलिस है वो बावजूद कम वसाइल के उसकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई शानदार है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब ये मुलजिम अरेस्ट हुआ क्या इसने पुलिस को बताया कि क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी
کہ ایک گھریلو میٹر ہے جس کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے گفت و شنید سے باحسن طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا تھا. ایسا کیا ہو گیا, کیا ایسے معاملات بگڑے کہ اس کو فائرنگ کرنا پڑی, اس کو ایک جان لینا پڑی, اور پھر اپنی طرف سے تو دونوں کو مار کے چلا گیا تھا. وہ تو اللہ پاک نے زندگی رکھی ہوئی تھی اس کی بیگم کی, جو اس کی زندگی بچ گئی ہے. ایسا کیا تھا, کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو اس حد تک جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا کہ وہ قتل جیسے جرم کا اس نے ارتکاب کر دیا؟ دیکھیں, اس میں جو قاتل ہے ملزم سجاد اکبر جو ہے, اس کی قریباً 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی, 4-5 ماہ پہلے. تو جو اس کی بیوی تھی اقرا پروین, یہ 4 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی. تو گھریلو ان کے کچھ تنازعات پیدا ہوئے. تو جو اقرا پروین ہے, اس کا کہنا تھا کہ یہ خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا, اس کا خیال نہیں رکھتا تھا. تو یہ ناراض ہو کے اپنے میکے آ گئی. تو اس سے پہلے اس نے 2 دفعہ اس کو منانے کی کوشش کی ہے. تو اس دن پھر یہ جب گیا تو اس نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے. اصل میں یہ جو ہمارے معاشرے کی جو عدم برداشت ہے اس کی عکاسی کرتی ہے, یہ جو وقوع ہے. تو بس یہ عدم برداشت کا ہی جو ہے وہ ایک تسلسل ہے. شعیب بھائی, ایک لٹریسی ریٹ کا کم ہونا اور دوسرا غربت, یہ میرے خیال سے 2 ایسے تاریک پہلو ہیں ہماری سوسائٹی کے جو ہماری زندگیوں سے برداشت کو ختم کر رہے ہیں, عدم برداشت کو پروان چڑھا رہے ہیں. تیسرا, اس ملزم کے پاس ایک ایسے آرم کا ہونا, ایک ایسے ویپن کا ہونا جس کا وہ اتھرائز نہیں ہے, وہ ایک بغیر لائسنس کے جو ہے پسٹل کیری کر رہا ہے. یہ کہاں سے ہماری سوسائٹی میں گھس آیا ہے اتنا اسلحہ؟ فیصل آباد پولیس ہماری اطلاع کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جن کے پاس ان آتھورائزڈ ویپنز ہوتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں یہ, اور اتنی آسانی سے شہریوں کو کیسے دستیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو بنیادی طور پہ اس میں 2-3 باتیں شامل ہیں جو ہمیں محرکات نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جی, جو والدین ہیں وہ برائے مہربانی جب بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کریں تو جس سے وہ شادی کریں کم از کم اس کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کریں, اور یہ کم عمری کی شادی نہ کریں. میچور جو بچیاں ان کی شادی کریں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہیں سسرال والے ہیں, ان کو بھی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے مسائل ہیں, چاہے وہ معاشی طور پہ ہیں, معاشرتی طور پہ ہیں, کسی بھی قسم کے, تو کائنڈلی وہ متعلقہ پولیس کو مطلع کریں. ہم ان کے مسائل کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں. تو وہ قانون کو ہرگز اپنے ہاتھ میں نہ لیں, جس کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی ہے اور ایک جو بچی ہے وہ شدید زخمی ہے. اس کے زخم تو شاید مندمل ہو جائیں گے لیکن وہ انسانی جان واپس نہیں آئے گی. اچھا شعیب بھائی, ایک ہمارے ہاں ایک پرسیپشن یہ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے, شاید اس میں ہمارا میڈیا کا قصور ہے, سوشل میڈیا کا اویئرنیس ہم پوری نہیں دے سکے. وہ کون سی ایسی سچویشنز ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں پرسیپشن یہ ہے کہ صرف ڈکیتی, قتل یا اس طرح کی کسی واردات کی شکل میں جو ہے وہ پولیس کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے گھریلو مسائل میں, ہم اپنے معاشرتی طور پہ پیش آنے والی کسی بھی پرابلم میں پولیس کو انوالو کرنا مناسب سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ اگر کیا جائے تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. پولیس باقاعدہ ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کرتی ہے. کون سے ایسے مسائل ہیں جس پہ اگر وہ درپیش ہوں تو پولیس کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ لے کے جو ہے وہ جناب آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں ان کے ویژن کو آگے بڑھا رہی ہے. تو اب تو جو تھانہ جات کے ماحول ہیں, جو ایٹماسفیئر ہے وہ انتہائی فرینڈلی ہے, اور چاہے کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کی فل فور ایف آئی آر بھی ہوتی ہے, فری رجسٹریشن ہے, اور پولیس جو ہے وہ 15 کال پہ رسپونڈ فوری کرتی ہے, اور تمام جو کمپلینٹس ہیں وہ بر وقت ان کی ڈسپوزل ہوتی ہے. تو کائنڈلی لوگ جو ہیں وہ پولیس پہ ڈپینڈ کریں اور ہمیں بتائیں. ناظرین کرام, انسپیکٹر شعیب احمد SHO تھانہ غلام محمد آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور قتل کی اس واردات کے بارے میں بریف کر رہے تھے جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کے میکے میں جا کر روٹھی ہوئی بیوی کو اور اس کے بھائی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں سالہ یعنی کہ بیوی کا بھائی جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہوا اور اس کی بیوی زخمی ہوگی. پولیس نے
मुलजिम को चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया है और पाबंद सलासिल है, उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी फ़ाइल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल हमारे मुआशरे में पनपती हुई अदम बर्दाश्त का है, रिश्तों में ठहराव का है। जो बात टेबल टॉक गुफ्तगू शनीद से हल हो सकती है, उसके लिए वायलेंस जो है वो इंतहाई गैर ज़रूरी फेल। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक जालिम शख्स ने अपने ससुराल में रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए जो गया, वहाँ पर फायरिंग करके अपने बरादर निस्बती यानी साले को कत्ल किया और बीवी को गोलियों की बरसात करके ज़ख्मी कर दिया। रिश्तों में एतदाल और ठहराव किस कदर ज़रूरी है, ये आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे घरों में ज़रा सी बात पर नाचाकियाँ कत्ल गारत तक पहुँच जाती हैं। टीम मुजरिम कौन यही कहती है कि अपने रिश्तों में एतदाल और ठहराव पैदा कीजिए ताकि ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।